After going this, as the years rolled by, we saw less of each other. Narrator is telling them that when they went back or went to the city, changes came in their relationship, means the between the relationship of grandmother and the narrator. And what happened then? Usually, the connection between them started to lessen. उन दोनों के बीच संबंध होना, एक दूसरे से मिलना जुलना, बातचीत करना, वह धीरे धीरे कम होने लगा. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. Narrator is here expressing that with the passage of time, the relationship got changed. The thread of the relationship effectiveness was decreasing, and there was only a little bit relationship up to the asking by the grandmother about the teaching of the school. Miss grandmother used to ask with the narrator what was taught in the school, in which way taught, what topic was taught, etc., etc. And after that, they become in making it and available the breads and rice grains to the sparrows, and the narrator used to become in his study and other game, etc. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd associations. It was the monopoly of her lords and beggars and not meant for gentle folk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. Nata is saying that when grandmother usually asked what was taught in English, taught in class and school, then grandmother used to tell, narrator used to tell to his grandmother that some English words, Western culture, etc., Western stories, and some other facts were taught to him in school, including dancing and singing, etc., and all those were belonging to the Western society. Now Dadi did not say anything about this, but it meant that she was not liking such study in the school. नरेटर ने बताया कि पाश्चात्य सभ्यता से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, कुछ अंग्रेजी वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, एक्सेट्रा पढ़ाए जाते हैं. दादी यह सुनी लेकिन कुछ बोली नहीं. तो न बोलने का मतलब नरेटर कह रहे हैं कि इसका मतलब क्लियर था कि वो इस बात को लाइक नहीं करती थी कि स्कूल में ऐसी स्टडी हो रही है और मेरा बच्चा, मेरा पोता या नाती जो भी है वह इस कदर की स्टडी करे. बट she was compelled due to the situation. She could do nothing, so she said nothing, kept silence. And after that, the conversation between grandamma and the narrator happened sometimes, took place sometimes equal of nothing. कभी कदार ही उन लोगों के बीच कन्वर्सेशन हुआ, बातचीत हुआ, और वो भी नहीं के बराबर हुआ. वरना दादी और खुशवंत सिंह के बीच जो संबंध था एक दूसरे से जुड़ने का, वो खत्म हो गया. When I means the narrator खुशवंत सिंह. When I went up to university, जब यूनिवर्सिटी गए, I was given a room of my own. Narrator became grown up adult. Separate room was allotted to him in his home. नरेटर को बड़ा होने के नाते अब अलग घर दिया गया. अब दादी के साथ सोना भी छूट गया. The common link of friendship was snapped. Snapped means broke off. जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप था, एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे पर डिपेंड होना दादी और ग्रैंडसन का, that was snapped, टूट गया, कमजोर पड़ गया. My grandmother accepted her seclusion with resignation. Seclusion में होता है एकांतवास. अब दादी एकांतवास करने लगी. नरेटर से ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी.
अपनी बात करती, अपना एकांतवास में रहती, अपना भजन कीर्तन जो भी होता वही करती। रोजरी ब्रीड्स जो था वो काउंट करती, लेकिन was not interested more in the narrator for the passing of the day. She rarely miss मुश्किल से left her spinning wheel to talk to anyone. बड़ी शायद ही कभी भी वह सूत काटना छोड़ती, वरना हमेशा सूत काटने में ही लगी रहती। From sunrise to sunset, सुबह से शाम तक। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Means from beginning of the day to the end of the day, that is to the night, from early morning to the night, late night. She used to spin wheels and rarely talk to someone else by giving up the spinning of the wheel. वह बड़ी मुश्किल से भी कभी किसी से बात करती, वरना हमेशा सूत काटती रहती, अपने काम में व्यस्त रहती। शहर में जाकर वह बिल्कुल बदल गई। But she was compelled to live there. From sunrise to sunset, sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. केवल दोपहर में थोड़ा सा वो छुट्टी लेती सूत काटने से, और वो भी क्या करती, तो चिड़ियों को दाना डालती, पीस ऑफ ब्रेड, ग्रेन्स ऑफ राइस, अनाज के दाने एटसेट्रा वह डालती, अन्यथा वह चली गई अपना सूत काटने में ही व्यस्त रहती। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. यानी कि जब वह बरामदे में बैठकर रोटी का टुकड़ा तोड़ने लगती चिड़ियों को खिलाने के लिए, तब तक ढेर सारी चिड़िया आकर उनके इर्द गिर्द बैठ जाती, उन्हें घेर लेती, चहचहाती, उनके पास जाती, उनसे खेलती, उनसे लगती, उलझती और ब्रेड खाती, रोटी का टुकड़ा खाती। Some came and perched on her legs, कुछ आती उनके पैर पे बैठ जाती। Other on her shoulders, कुछ उसके कंधों पे बैठ जाती। Some even sat on her head, कुछ उनके सर पे भी बैठ जाती। She smiled but never showed them away. SHOOE. Shoo means हटाना, उड़ाना, यानी चिड़िया कंधे पे, सर पे, शरीर पे कहीं बैठती, उनके हाथ में से दाने ले लेती, रोटी ले लेती, लेकिन दादी कभी भी उन्हें कुछ कहती नहीं, भगाती नहीं, कोई कष्ट नहीं देती। It used to be the happiest half hour of the day for her. और यह टाइम जो था, यह उनके लिए दिन भर का सबसे सुखी और खुशी का माहौल और दिन होता, सबसे सुखद दिन होता। When I decided to go abroad for further study, नरेटर कह रहे हैं कि जब मैं निश्चय किया कि अब मैं बाहर जाऊंगा पढ़ने के लिए यहाँ से, I was sure my grandmother would be upset. तो नरेटर कह रहे हैं कि जब मैं बाहर जाने का निश्चय लिया, तो ये मैं श्योर था, निश्चित था, मुझे मन में भरोसा था कि मेरी दादी यह सुनकर बहुत दुखी होंगी कि यह बाहर पढ़ने जा रहा है। I would be away for 5 years. 5 सालों के लिए नरेटर was going abroad for 5 years to complete his study. And at her age one could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotions. Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer, her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. Narrator is saying that when he was departing from his own country, that is from the India to the abroad, to the foreign country to complete his study, then he was thinking that his grandmother would go upset, उसकी दादी upset हो जाएंगी. But when he was going, his grandmother also came with him to see off on the airport. Though the whole way she did not say anything except counting the rosary beads, that is the जो उनके हाथ में माला था उसे जपने के सिवा कुछ नहीं बोली. And at the last moment his narrator was going to sit into the aeroplane, just before she kissed the forehead of the narrator with the love, affection and emotion.
And poet narrator is saying that that was perhaps the last physical touch of the grandmother for the खुशवंत सिंह, दैट इज द नरेटर। नरेटर कहें कि वह आखिरी शारीरिक टच था जब उन्होंने मेरा माथा चूमा विदाई देने में। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन वैसा नहीं हुआ, क्योंकि नरेटर सोचा कि दादी बूढ़ी हैं, पता नहीं मिलेंगी कि नहीं, तो उनके मन में चेरिश में संजो कर रख लिया कि चलो यही दादी का आखिरी स्पर्श है मेरे प्रति, अब भविष्य में क्या होगा भगवान जाने। लेकिन अब नरेटर कह रहे हैं कि बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिचुएशन वाज अपोजिट। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 सालों बाद नरेटर वापस आए, एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और जब वापस आए स्टेशन पे आए तो देखे दादी अभी खड़ी थी। मींस दादी और ग्रैंडसन बोथ मेट टू ईच अदर। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह थोड़ी भी बूढ़ी नहीं मालूम पड़ रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास फिर भी अभी उतने दिनों के मिलने के बाद भी कोई शब्द नहीं थे जिसे वो कुछ कहें। शी वॉज बिजी इन काउंटिंग रोजरी बीड्स, एंड व्हाइल शी क्लैस्प्ड मी, क्लैस्प्ड मींस जकड़ लेना, गले लगा लेना, मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। जब गले लगाई दादी, तब नरेटर फिर से वही सेम प्रेयर उनके मुंह से उस समय सुन सकते थे जब विदेश से वापस आए फॉरेन से। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes. Frivolous rebukes means थोड़ी मोड़ी तुच्छ गालियां, झटक पटक करना चिड़ियों के साथ। मिस कह रहे हैं कि on the day when after long time 5 years narrator returned back to the home, even on that day Dadi was busy for half an hour to feed to the sparrows with the some scolding to the little bit scolding to the sparrows, छोटी मोटी डांट के साथ चिड़ियों को खिलाएं। उस दिन भी बिजी रही। इन द इवनिंग, शाम में चेंज केम ओवर हर, जिस दिन नरेटर आया उसी शाम को कुछ थोड़ा सा परिवर्तन दादी में आया उनके हेल्थ में। शी डिड नॉट प्रे, उस दिन वो गाना नहीं गाए, दैट इज द भजन कीर्तन नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन, उन्होंने औरतों को कलेक्ट किया। ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम लाइन, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू किया, गाना बजाना किया, जश्न मनाया कि उनका पोता आया था, नाती आया था फॉरेन से पढ़ करके। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग, सैगिंग मींस फटा चिथड़ा, स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, डिलैपिडेटेड मींस दुर्दिन में, दुर्दशा में, यानी ऐसा ड्रम जो दुर्दशा में था, फटा चिथड़ा, पुराना ऑलरेडी था, रफ था, उस ड्रम को लगभग घंटों तक उन्होंने पीटा, गाया और बजाया। एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और गाना गाया, कौन सा गाना कि जो योद्धा वापस आते हैं तो गाया जाता है, वही गाना ये गाई। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. Overstraining means जो गले में गाना गाने में बर्डन आता है, भार पड़ता है शरीर पे, तो उसे ओवरस्ट्रेनिंग कह रहे हैं। कि ये लोग परसुएड मनाए दादी को कि दादी मत गाओ, आपके लिए हार्मफुल है, क्योंकि एक्सट्रीम बर्डन, ज्यादा बर्डन गले पे पड़ रहा है और आप पे बीमार हो जाओगे, आप ओल्ड हो गए हो, इसलिए इस तरह से मत गाओ। लोग मनाए। दे ट्राइड टू परसू हर, एग्री हर। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। कह रहे कि वही एक समय था जब नरेटर को यह पता चला कि दादी आज प्रेयर नहीं की हैं। अन्यथा डेली दादी यूज्ड टू काउंट rosary beads as a prayer, symbol of prayer. The next morning she was taken ill, अगली सुबह बीमार हो गई। It was a mild fever, हल्का सा बुखार था। And the doctor told us, डॉक्टर ने बताया that it would go, कि वह चलेगा, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। But my grandmother thought differently, लेकिन जो नरेटर की दादी थी वह अलग कुछ सोच रही थी, उनके समझ में कुछ अलग था, क्योंकि that was the experience of her life, whole life. She told us, उन्होंने बताया दादी ने, that her end was near, that she was about to die. दादी कहें कि अब मैं मरने वाली हूँ, अब मेरा अंत समय है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. दादी कहें कि देखो आज पहली बार है जो जीवन में मैं गाई नहीं, प्रेयर नहीं की, और यह मेरे जीवन का लास्ट टाइम है। अब मेरा जीवन खत्म होने से पहले एक बार मुझे शांति से छोड़ दो, मैं कुछ प्रेयर कर लूं। दिस वाज द रिक्वेस्ट बाय द दादी टुवर्ड्स द फैमिली मेंबर्स हू वर सराउंडेड हर।
वी प्रोटेस्टेड मीन अपोज किया, विरोध किया। लोग कहे रहे नहीं आपकी तबीयत खराब है, हम लोग कैसे छोड़ दें। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन दादी ने कहा नहीं चुपचाप हटो, बस मुझे प्रेयर कर लें दो, थोड़ा सा मेरा आखिरी समय आ गया है। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, और भगवान की पूजा प्रार्थना करते हुए वे बिस्तर पे शांति से लेट गईं। एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपनी जो बीड्स थी रोजरी यानी माला थी उसे काउंट करने लगी, भगवान की पूजा करने लगी। बिकेम बिजी इन बीड्स इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ सस्पेक्ट मीन्स संदेह होना, यहाँ तक कि नरेटर कह रहे हैं कि वो थोड़ा संदेह करते उससे पहले हर लिप्स स्टॉप, उनका मुंह बंद हो गया। मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनके जो रोजरी बीड्स यानी माला थी काउंट करने वाली भगवान का नाम जो कंठमाला इसे कहते हैं, वह जमीन पे गिर गई उनकी उंगलियों से छूट करके। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, पैलर मीन्स पिलापीपन, उदासी सी, हल्कापन, विदर्ड जो मतलब सफेदी लिए हुए, और एक शांति भरी सफेदी उनके चेहरे पे फैल गई। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और अब ये लोग जान गए कि नहीं अब दादी हैज पास्ट, दादी मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, अब इन्होंने बिस्तर पर से डेड बॉडी को उठाया दादी की। एंड एज इज कस्टमरी, जैसे कि परंपरा थी उसे फॉलो करते हुए, लेड हर ऑन द ग्राउंड, दादी के डेड बॉडी को बिस्तर पे लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, श्राउड मीन्स होता है कफन, और दादी के शरीर को लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, लगभग कुछ घंटों बाद, ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर एलोन, लोगों ने इन्हें अकेला डेड बॉडी को छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट, किस लिए, तो अरेंजमेंट करने के लिए, उनका दाह संस्कार के लिए, फ्यूनरल के लिए, अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। इन द इवनिंग, शाम में, वी वेंट टू हर रूम, शाम को ये लोग उनके रूम में गए जहां दादी को नीचे लेटाया गया था। विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, क्रीमेटेड मीन्स दाह संस्कार, दफन करना, जलाना, तो जलाने के लिए, ले जाने के लिए, घाट पे ले जाने के लिए ये लोग वहां पे आए ताकि दादी को ले जाएं। द सन वाज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था। एंड हैड लीट हर रूम, और जो सूर्यास्त के लालिमा की वजह से जो दादी का रूम था वह पूरा लाल लाल हो गया था। एंड वेरांडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी लाइट, दैट इज द रेड कलर लाइट वाज प्रिवेलिंग इन द रूम ऑफ द दादी एंड द वेरांडा आल्सो। वी स्टॉप्ड हाफवे इन द कोर्टयार्ड, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud। कह रही हैं कि ये वरांदे में दादी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, कफन से ढकी हुई थी, वहां जाकर ये लोग रुक गए। उसके बाद the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। अब दादी का रूम जो था जहां डेड बॉडी पड़ी थी वहां पे हजारों हजार चिड़ियां, स्पैरो, गौरैया जो थी उन्हें घेर कर उस फर्श पे बैठी थी, लेकिन चुपचाप थी, कहीं चिरपिंग नहीं हो रही थी हमेशा की तरह। मींस sparrows were also showing remorse and sorrow for the death of the दादी, grandmother। Floor, there was no chirping, we felt sorry for the birds and my mother fetched means दिया, scattered some bread for them। नरेटर की माँ ने, चूंकि दादी तो एक्सपायर कर गई थी, तो माँ ने जो था कुछ ब्रेड चिड़ियों को फेंका, क्योंकि दादी फेंका करती थी, मदर सोची कि चिड़िया खाएंगी, उसी तरह से फेंक दिया। थ्रू द पीस ऑफ द ब्रेड, शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंडमदर यूज्ड टू, जैसे कि दादी तोड़ा करती थी वैसे ही तोड़ा। एंड थ्रू इट टू देम, और चिड़ियों को डाल दिया। The sparrows took no notice of the bread, but on that day, due to the death of the daddy, sparrows were so sorrowful and remorseful that even a single sparrow did not take a single bit piece of the bread। छोटा सा भी टुकड़ा एक भी गौरैया ने नहीं खाया। वे सभी दुखी थी क्योंकि दादी मर चुकी थी, उन्हीं को घेर कर वे सराउंडिंग में सराउंड करके बैठी हुई थी चुपचाप। When we carried my grandmother's corpse off, corpse का मतलब होता है डेड बॉडी, कैरीड ऑफ का मतलब ले गए, मींस उठाकर दादी की डेड बॉडी को जब ये लोग ले जाने लगे क्रीमेटेशन के लिए, दे मिस द स्पैरो फ्लू अवे क्वाइटली, चुपचाप दूर उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले सुबह स्वीपर आया, साफ सफाई झाड़ू पोछा करने वाला, और वो जो था सबको उठा करके डस्टबिन में सारा पीस ऑफ द ब्रेड डाल दिया,
और स्पैरोस कुछ नहीं खाई। जब दादी की डेड बॉडी को ले जाने लगा तो चिड़िया भी चुपचाप वहां से उड़ गई, कुछ भी नहीं बोली, कुछ भी नहीं कही। थ्रू दिस वे योर फर्स्ट लेसन, अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी written by Khushwant Singh is completed. If you have any doubt then ask me, otherwise I will say bye.